Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's lecture, we are going to discuss another topic of development biology, that is gastrulation. So let's start the lecture. What is gastrulation? Gastrulation is a fundamental process in embryonic development, and it leads to the formation of three primary germ layers, which is first is the ectoderm, second one is the mesoderm, and third one is the endoderm. These three germ layers are very important for the whole development of the organism, and this process of gastrulation is a dynamic process, which means it involves cell movement. Along with cell movement, it also involves cell differentiation and morphogenetic changes in the developing embryo itself. Now, gastrulation will establish the body plan for the organism, and it also lays down the foundation for the organogenesis. That means gastrulation is very important for formation of different organs. Now, what is the importance of gastrulation? Number one, the formation of germ layers will establish the basic body plan for the organism. For example, there are different germ layers as such: ectoderm, mesoderm, and endoderm. And these three germ layers occurs in the organism, and they are called triploblastic organism. If there are only two germ layers in the organism, then the organism will call diploblastic, right? Diploblastic. So these three germ layers are very important because they are eventually going to make the whole body of the organism. Every organ and everything else of which the body of the organism is composed of is basically made up of these three germ layers. Secondly, this gastrulation will initiate the body plan of the organism. So it will define the anterior posterior polarity of the body, as well as the dorsal ventral and left right axis of the body. So the axis formation is basically started or initiated by the gastrulation itself. Then third, the foundation of organogenesis, because during gastrulation there is cell movement, so it will prepare the cell for future tissue and organ development. Then there is cellular differentiation. The cell acquires distinct fate based on the position and signaling cues, and that is happening because of the gastrulation, because cells are moving from here to there. And lastly, there is morphogenetic movement which facilitate large scale cellular rearrangement which is necessary for body structure formation. तो ओवरऑल हमें क्या समझ आ रहा है कि ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस सेल मूवमेंट होती है, और वहाँ से आपको डिफरेंट जर्म लेयर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन दिखाई देती है, और वो जर्म लेयर्स जो हैं वो बॉडी का एक प्लान बना रही हैं जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस का फाउंडेशन तो बन ही रहा है, लेकिन साथ साथ में वो बॉडी प्लान में आप कह लीजिए एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल और डिफरेंट टाइप की जो एक्सिस हैं उसकी फॉर्मेशन करवा रही है, और इवेंचुअली सेल में डिफ्रेंशिएशन होगा बिकॉज सेल जो है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिग्नलिंग क्यूज से जो है सिग्नलिंग क्यूज के थ्रू जो है वहाँ पे जो अपना फेट है उसको एक्वायर करेगा. एंड लास्टली, ये जो लार्ज स्केल का सेलुलर रीअरेंजमेंट है उसके लिए जो मूवमेंट है दैट इज़ बेसिकली फैसिलिटेटेड थ्रू gastrulation. Now, the morphogenetic movements which are basically occurring during the gastrulation, there are different type of movements. So, इसमें होता क्या है, there will be repositioning of the cells. ओके, तो अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन में जो है वो सेल वहाँ तक पहुँच जाएगा. अब ये मूवमेंट ही हैं जिन पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ इनवेजिनेशन. इनवेजिनेशन क्या होता है, देर इज़ इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ अ शीट ऑफ सेल्स. तो ओवरऑल शीट ही है सेल की जो अंदर की तरफ मूव कर रही है, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे अगर सी अर्चिन के केस में देखेंगे आर्केंटेरॉन विच इज़ दी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ दी बेसिकली गट. आर्केंटेरॉन से बाद में गट बनने वाली है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल. तो इनवेजिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे आपको येलो कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर की तरफ मूव कर रही है, राइट. सो देर इज़ होल शीट ऑफ सेल्स. ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल सेल जा रहा है, पूरी शीट जो है सेल की वो इनवर्ड मूवमेंट करके आप कह लीजिए वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, राइट. इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, सी अर्चिन में एंडोडर्म का फॉर्मेशन जो है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ इनवेजिनेशन. Now, second type of movement is called involution. In this movement, there is inward rolling of the expanding sheet of cells over an internal surface. So, you will see ये थोड़ा सा different है from the invagination. इसमें क्या था, inward folding हो रही थी तो fold हो रहा है अंदर को sheet, लेकिन involution में folding नहीं हो रही. Basically, there is expansion of cell. और ये एक्सटर्नल सेल्स है, इनके अंदर आपको इस तरह से ये एरो में दिख भी रहा है कि एक्सपैंड कर रहे हैं सेल्स इनवर्ड, राइट. एंड यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एम्फीबियन के केस में जो मीजोडर्म का फॉर्मेशन है वो थ्रू इन्वोल्यूशन ही बनता है. तो आपको क्वेश्चन भी इसी तरह से मिलते हैं.
राइट आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि एम्फीबियन डेवलपमेंट में मीजोडर्म जब फॉर्म हो रही थी तो गैस्ट्रोलेटरी कौन सी मूवमेंट हो रही थी. सो द आंसर विल बी इन्वोल्यूशन. राइट. Third type of movement is ingression. In this movement, there is migration of individual cell into the embryo. Now this in this kind of movement एक एक सेल जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है. यहाँ पे आपको एरो से दिख भी रहा है. और ये जो मूवमेंट है दिस इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ द मीजनकाइम सेल इन केस ऑफ सी अर्चिन एज वेल एज इन केस ऑफ बर्ड. इसके अलावा यू कैन सी अर्चिन में मीजोडर्म का फॉर्मेशन जो है वो इंग्रेशन के थ्रू हो रहा है. और ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई जो है उसमें न्यूरोब्लास्ट जो बनता है वो भी इंग्रेशन मूवमेंट के थ्रू ही बनता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एपिबोली. इसमें क्या होता है, देयर इज एक्सपेंशन एंड थिनिंग ऑफ द एपिथेलियल शीट टू एनक्लोज डीपर लेयर. अब यहाँ पे देखो ये एक्सपेंशन दिखा रहा है बाहर की तरफ. ये जो ब्लू कलर के सेल हैं दीज आर एपिथेलियल सेल. सो एपिथेलियल शीट का जो एक्सपेंशन है और थिनिंग है वो होगा ताकि जो डीप लेयर्स हैं इनको कवर कर लिया जाए. दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एपिबोली. और एपिबोली जो है इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, द एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन केस ऑफ सी अर्चिन. तो सी अर्चिन के केस में एक्टोडर्म कैसे बनती है, एपिबोली के थ्रू बनती है. सेम ट्यूनिकेट्स की अगर हम बात करें या एम्फीबियंस की बात करें उनमें भी एक्टोडर्म फॉर्मेशन जो है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एपिबोली गैस्ट्रोलेटरी मूवमेंट. एंड लास्ट वन इज कॉल्ड डीलैमिनेशन. In this there is splitting and migration of one cellular sheet into the multiple layer. तो एक जो cellular sheet है वो split हो जाएगी और उससे multiple जो cellular sheet हैं वो बन सकती हैं, multiple layers बन सकती हैं. और ये एक characteristic movement है delamination which you will see in the hypoblast formation in case of birds एज वेल एज इन केस ऑफ मैमल. तो मैमल या बर्ड्स के केस में जब भी हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे आपको कौन सा मूवमेंट दिखाई देता है, डीलैमिनेशन. तो ओवरऑल आई टॉक्ड अबाउट दीज 5 गैस्ट्रोलेटरी मूवमेंट्स. राइट. इनवेजिनेशन तो यहाँ पे पूरी इनफोल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, सी अर्चिन में एंडोडर्म में होता है. वैसे इन्वोल्यूशन जिसमें क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट है लेकिन शीट की मूवमेंट जो है हो रही है. ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है इनवर्ड मूवमेंट में. इसमें एम्फीबियन का मीजोडर्म याद रखेंगे. इंग्रेशन की बात करेंगे तो इंडिविजुअल सेल जा रहा है. तो मीजोडर्म तो है लेकिन वो सी अर्चिन का है. राइट. सी अर्चिन का एंडोडर्म कैसे बन रहा है, इन्वेजिनेशन से. ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट इंग्रेशन से बन रहा है. देन देर इज डीलैमिनेशन वेयर देर इज स्प्लिटिंग ऑफ द लेयर एंड इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग दी हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन केस ऑफ बर्ड्स एंड एज वेल एज मैमल. और एपीबोली जो है जिसमें आपको एक्सपेंशन जो है या थिनिंग दिखाई दे रही है एपिथेलियल लेयर की, दैट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोडर्म in sea urchin, tunicates and as well as in amphibian. So these are 5 type of the gastrulatory movements. इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. देन देर इज़ गैस्ट्रुलेशन इन डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म. देखिए बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं. अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करें तो अलग अलग जो क्लासेस हैं उनमें गैस्ट्रुलेशन किस तरह से होती है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी अर्चिन, सो सी अर्चिन के केस में देर इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो जब भी आप शुरू करेंगे जाइगोट से क्लीवेज से होते हुए वहाँ से डिवीजन होके पहले मोरूला स्टेज बनती है विच इज़ अ सॉलिड बॉल स्टेज. देन देर इज़ ब्लास्टूला स्टेज. राइट, जिसमें आपको ब्लास्टोसील मिलती है. एंड देन देर इज़ गैस्ट्रोला स्टेज जो है वहाँ पे मूवमेंट्स दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं. तो सी अर्चिन के केस मैंने अभी आपको बताया मीजनकाइम, प्राइमरी मीजनकाइम सेल्स में जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको इंग्रेशन मूवमेंट मिलेगी. ठीक है. तो गैस्ट्रुलेशन बेसिकली बिगिन्स विद इंग्रेशन. राइट. देन देर इज़ इन्वेजिनेशन ऑफ द एंडोडर्म जिसकी वजह से आर्किंटेरॉन का फॉर्मेशन होगा. Then there is secondary mesenchyme cell which will contribute to the skeletal element cell and gastrulation will result in formation of the tripartite body plan. Right. तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में भी अच्छे से दिख रहा है कि जब हमने शुरू किया, जैसे यहाँ पे mesenchyme blastula की बात कर रहे हैं तो आपके पास एनिमल पोल है, वेजिटल पोल है, लेकिन जैसे जैसे गैस्ट्रुलेशन आगे को बढ़ रही है तो यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको डिनोट किया गया है और रेड कलर से भी कि सेल की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है. ठीक है. और फाइनली यू हैव दिस थिंग प्लूटियस, दिस इज द लार्वल फॉर्म. ठीक है. तो लार्वा दिखाई दे रहा है. तो मूवमेंट की वजह से चेंज जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि किस जर्म लेयर के फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सी मूवमेंट हो रही है. यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ बताया है. जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में थरोली पढ़ोगे तो उसकी गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट को वहाँ पे आपने डिटेल में कर सकते हो. ठीक है. मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रही हूँ. Secondly, if you see in amphibian gastrulation,
तो वहाँ पे जिनोपस का एग्जाम्पल लिया है, तो इट इज़ इनिशिएटेड एट द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी होना ज़रूरी है। डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर क्या होता है, इफ़ यू डोंट नो इट प्लीज़ गो बैक एंड रीड अबाउट एम्फीबियन डेवलपमेंट। एम्फीबियन डेवलपमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो विल गेट टू नो अबाउट द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ से मूवमेंट शुरू होती है सेल की, राइट। यहाँ पे दिखाया भी गया किस तरह से मूवमेंट स्टार्ट होगी। देन देर इज़ इन्वोल्यूशन ऑफ द मीजोडर्म सेल। तो अगेन ये आप याद कर सकते हैं कि मीजोडर्म फॉर्मेशन के लिए इन्वोल्यूशन चाहिए। फिर देर इज़ कन्वर्जेंट एक्सटेंशन विच ड्राइव्स द इलॉन्गेशन। फाइनली देर इज़ एपिबॉली ऑफ द एक्टोडर्मल सेल। तो एक्टोडर्म को बनाने के लिए एपिबॉली चाहिए। एंड लास्टली द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड्स एंड न्यूरल इंडक्शन विल आकर, राइट। यहाँ पे आपको जो एरोज हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है। तो दिस इज ब्लास्टोपोर वेंट्रल साइड पे है, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट है अंदर की तरफ होगी। ये ऊपर आपको ये जो दोनों एरो की तरफ दिखाया रखा है, दिस इज बेसिकली एक्सपेंशन एक्टोडर्म का। बीच में ये आर्केंटिरॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे इन्वोल्यूशन दिखाई गई है इस तरह से, ये रहा, ठीक है। तो इन्वोल्यूशन मेसोडर्मल सेल की हो रही है। सो दिस इज एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन। देन देर इज एवियन गैस्ट्रुलेशन, जो चिक एम्ब्रियो में है वहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पे जो एवियन गैस्ट्रुलेशन है कहाँ से शुरू होती है, तो थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रिक। नाउ व्हाट इज़ प्रिमिटिव स्ट्रिक, आप जो सक्सेसिव लेक्चर्स यहाँ इस यूनिट के आएंगे उसमें चिक डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, देयर यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो मिड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया भी गया है। ये देखिए ये प्रिमिटिव स्ट्रिक है, यहाँ से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है और इसका एक नोड बनता है जिसको आप हैंसन नोड कहते हो। बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे सेल कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जिसको आप ऑर्गेनाइजर कहोगे, क्योंकि वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी। और पहली मूवमेंट क्या है, सेल विल इनग्रेस। तो बेसिकली इनग्रेशन हो रहा है थ्रू द स्ट्रिक एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। सो इन केस ऑफ चिक द मीजोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्मेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द इंग्रेशन मूवमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है, देन देर इज एपिबोली एंड कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, जिससे आप एम्ब्रियो का इलॉन्गेशन जो है देखेंगे। तो यहाँ पे दो मूवमेंट्स की बात की गई है, एक इंग्रेशन है, दूसरा एपिबोली, ठीक है। एंड लास्टली देर इज़ मेमेलियन गैस्ट्रुलेशन। तो माउस या ह्यूमन की अगर हम बात करें, बिल्कुल एवियन गैस्ट्रुलेशन से काफ़ी सिमिलर है, बस इतना ध्यान रखेंगे इट अकर्स विद इन द एपिब्लास्ट रीजन, राइट। एंड देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑल्सो, प्रिमिटिव नोड का फॉर्मेशन भी होता है। सेल विल माइग्रेट टू फॉर्म 3 germ layers। एंड वन मोर थिंग, इन केस ऑफ द मैमल और अदर ऑर्गेनिज्म द गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स आर हाईली रेगुलेटेड बाय सिग्नलिंग पाथवे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप ह्यूमन की बात करेंगे तो बीएमपी, विंट और नोडल, ये 3 तरह के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दी मेमेलियन गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये देखिए दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला विद द यूट्राइन टिश्यू। ये सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट से आपको मूवमेंट दिखाया गया, सॉरी अटैचमेंट दिखाया गया है। दिस इज एमनियोटिक कैविटी एंड यू कैन सी दिस पोर्शन, इसको यहाँ पे एनलार्ज भी किया गया है। तो यहाँ पे यू कैन सी प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड, एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है। ये जो एरो हैं दे आर डिनोटिंग द मूवमेंट ऑफ द सेल। तो अगर आप इतने से सेक्शन को हाईलाइट करेंगे तो इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। दिस इज प्रिमिटिव groove, you can see the cell, these yellow cells, they are moving inward, right। तो यहाँ पे मूवमेंट दिखाई गई है और बीच में मूवमेंट की वजह से ये आपके मीजोडर्म सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज मूवमेंट ऑफ द सेल, और वो जो मूवमेंट है दैट इज गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट। मैमल्स और बर्ड्स में काफ़ी सिमिलर रहता है, ठीक है। ये एंडोडर्म का पोर्शन है जो हाइपोब्लास्ट से बनने वाली है। एपिब्लास्ट इवेंचुअली एक्टोडर्म बनाएगी, जो यहाँ पे बताया हुआ है डिस्टिंक्शन। और बीच में ये जो सेल हैं जो ईएमटी कर रहे हैं, एपिथेलियल मेसेनकाइम ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये मीजोडर्म बनाने वाले सेल हैं, ठीक है। ये प्रिजम्पटिव मीजोडर्म के सेल दिखाए गए हैं। तो ऑल ऑफ these movements are eventually leading to the formation of the ectoderm, mesoderm and thirdly endoderm। अब ये जो 3 germ layers बनाई हैं इन्होंने करना क्या है, तो पहले अगर हम मॉलिकुलर रेगुलेशन की बात करें तो अगर यहाँ पे अलग अलग तरह के सिग्नलिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट विंड सिग्नलिंग। तो ये मैं आपको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करता है उसकी बात बता रही हूँ, एक्सक्यूज मी। तो विंड सिग्नलिंग की अगर बात करें तो दिस इज असेंशियल फॉर एक्सिस फॉर्मेशन, दैट मीन्स लेफ्ट राइट डिसाइड करना, डॉर्सल वेंट्रल डिसाइड करना, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डिसाइड करना। एक्सिस फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएमपी विच इज़ बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन, इसकी अगर बात करें तो ये डॉर्सल वेंट्रल पैटर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडल सिग्नलिंग की बात करें तो इट इज़ बेसिकली रेगुलेट्स मीजोडर्म एंड एंडोडर्म का स्पेसिफिकेशन कि फर्दर उन्होंने क्या बनाना है। देन देर इज़ एफजीएफ विच इज़ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। FGF is mainly controlling cell migration and differentiation, very important factor। And then there is something called sonic hedgehog signaling will contribute into left and right
सिमेट्री, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, और इसका रोल न्यूरल पैटर्निंग में भी है। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह का रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको जनरल इनका रोल बताया है इन केस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, कि गैस्ट्रुलेटरी इवेंट्स में अगर एक्सेस फॉर्मेशन हो रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप विंड सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही अगर सेल माइग्रेशन की बात चल रही है तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट FGF, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर क्यूज। नाउ अगर आप गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो नो डाउट द गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मूवमेंट अगर ढंग से ना हो तो देयर विल बी सम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। जैसे बड़ा कॉमनली नोन एक डिसऑर्डर है स्पाइना बाइफिडा। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है जिससे ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, या स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके पोस्टीरियर एंड से बनता है, ठीक है। अब ये न्यूरल ट्यूब जो है ना, ये पहले ट्यूब बनती है, उसमें क्लोजर होता है। अगर न्यूरल ट्यूब का क्लोजर ना हो तो स्पाइना बाइफिडा करके एक डिसऑर्डर हो जाता है। वो क्लोजर जो होना है ना उसके लिए सेल मूवमेंट की ज़रूरत। अब सेल मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है? गैस्ट्रुलेशन पे। तो इसका मतलब है गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स में अगर डिफेक्ट आता है तो उससे आपको एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं। वन ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। देन देर इज सीटस इन्वर्सस, इसमें लेफ्ट राइट सिमेट्री नहीं बन पाती तो एसिमेट्रिक डिफेक्ट बन जाता है। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन फेलियर, जिसमें एम्ब्रियोनिक लिथैलिटी हो सकती है। इसका मतलब है एम्ब्रियो डेड ही हो जाएगा अगर गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स अच्छे से नहीं होते। तो दीज मूवमेंट्स कैन, अगर ये अच्छे से ना हो तो दे कैन लीड इनटू सम क्लिनिकल डिसऑर्डर्स इन द एम्ब्रियो इटसेल्फ। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर आप एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो इफ़ यू रीड अबाउट द कंपैरेटिव गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात करो तो एवोल्यूशन हमें वहाँ से समझ आता है क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटी है। अभी जो मैंने आपको पीछे मॉलिक्यूलर क्यूज़ की बात बताई ना, ये कंजर्वेटिव्स हैं, ये सभी में सेम तरह के ही आपको मिलने वाले क्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए लिखा भी है नोडल विंड हाई, ये जो हैं आपके दे आर द बेसिकली मॉलिक्यूल्स विच प्ले सेम रोल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। Then variation in gastrulation pattern can correlate with York distribution, that is something else। कि अगर आप York distribution या reproductive strategies की बात करेंगे तो that varies according, उसमें उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में गैस्ट्रुलेशन पैटर्न भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपस में देयर इज सम कोरिलेशन, तो वैसे आप स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज मूवमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that is it for today's lecture. From this lecture you get to know कि there are 5 type of gastulatory movements, और आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बाकी सब जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कुछ वर्टिब्रेट्स में किस तरह से मूवमेंट होती है वो बताए हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी मूवमेंट और किस ऑर्गेनिज्म में किस जर्म लेयर के लिए हो रही है, दैट इज़ योर की नोट फ्रॉम दिस लेक्चर। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ टू एंड द लेक्चर आई से, अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर सजेशन और योर क्वेरीज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स if you think they will be benefited from this video. Subscribe to the channel to support it and stay connected for upcoming lectures. Thank you so much for joining the lecture. I will see you all in the next video lecture.